Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 13 of the course Network Security. I hope that you are enjoying the lecture series and you are developing some basic understanding of how to ensure and incorporate security in networks. We have been using the term cryptography, which is in the second part of our lecture series. Let us have a look what we previously discussed. If you remember, following are the examples and following were the contents which we discussed in our previous lecture. We explored more examples of shift cipher or Caesar cipher, and we have seen that despite applying cryptography, the shift cipher is not secure enough, and we can easily break through a brute force attack. In Caesar cipher, we use keys, or we use a key with a size of 1 or 2 or 3 or a maximum of 26. We have seen that if the key size is 1, then the alphabet A would be represented as B, and the alphabet B would be represented as C. The alphabet C would be represented as D because the K size was 1. If the K size is 2, then the alphabet in the plain text A would be represented as C. The alphabet B would be represented as D. And if you want to decrypt with the same key and with the same size key, so D would be represented as B, C would be represented as A because you will use the same size key. So the brute force attack could be performed on the Caesar cipher in order to retrieve, in order to find the plain text hidden in the cipher text. We have seen that there could be a maximum of 26 possible keys, so you can use turn by turn in order to explain, in order to explore or find out or reveal the plain text from the cipher text. We interestingly discussed monoalphabetic cipher, and we have explored that how different substitutions and different keys or randomly randomly shifted alphabets can be used in order to make the monoalphabetic more secure. हमने ये बात की थी कि बजाय इसके कि आप A को और B को और C को एक sequential order जैसे कि A, B, C को आप represent करें C, D, E में, हम monoalphabetic में ये करते हैं कि हम randomly alphabets को change करते हैं या shift करते हैं. For example, A को P से represent करेंगे, B को Z से रिप्रेजेंट करेंगे, C को L से रिप्रेजेंट करेंगे. सो ये आप मिक्स एंड मैच करते हैं. सो इस तरीके से आपके पास 26 फैक्टोरियल पॉसिबल कीज आती हैं. 4 into 10 raised to power 26 पॉसिबल कीज आती हैं. इनको ब्रेक करने के लिए अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक की बात करें सो आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं. सो ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट मोनोअल्फाबेटिक साइफर्स सिक्योर हैं, लेकिन इसके साथ एक और मसला था और वो था फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक. फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक के थ्रू आप स्टिल मोनोअल्फाबेटिक साइफर को ब्रेक कर सकते हैं और उसमें से आप प्लेन टेक्स्ट रिवील कर सकते हैं. और हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि हमने जब एक साइफर टेक्स्ट पर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया और कुछ नोन फैक्ट्स जब हमने उसके साथ आइडेंटिफाई किए, हमने गेस
किए कुछ अल्फ़ाबेट्स को हमने हिट एंड ट्रायल किया, सो अल्टीमेटली वी वर सक्सेसफुल टू परफॉर्म क्रिप्टो एनालिसिस एंड वी वर सक्सेसफुल टू आइडेंटिफाई and to reveal the plain text through the cipher text. हमने ये भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हर क्रिप्टोग्राफिक स्कीम पर कुछ ना कुछ अटैक्स आते हैं. हम कोई भी क्लेम ऐसा नहीं कर सकते कि एक सर्टन क्रिप्टोग्राफिक स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा या अनब्रेकेबल है या जो है वो कंप्लीटली सिक्योर है, बल्कि उसको वो सर्टन अटैक्स के अगेंस्ट तो स्ट्रांग होती है वो क्रिप्टोग्राफिक स्कीम, लेकिन कुछ मजीद किस्म के अटैक्स के थ्रू उसको ब्रेक किया जा सकता है. सो हर क्रिप्टोग्राफिक स्कीम या एल्गोरिथम के अपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस उसमें पाई जाती हैं. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कुछ मजीद डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करेंगे. हम मुख्तलिफ क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स को देखेंगे, जिसमें से एक क्रिप्टोग्राफिक स्कीम जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे वो है पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर. पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर क्या होते हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आप साइफर टेक्स्ट अचीव कर सकते हैं और कैसे क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करके आप उससे वापस प्लेन टेक्स्ट हासिल कर सकते हैं. हम इसको भी देखेंगे. हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि वन टाइम पैड्स और वन टाइम पासवर्ड्स की सिक्योरिटी कितना प्रैक्टिकल है या जो है वो कितनी स्ट्रांग है. एंड लास्टली वी विल आल्सो डिस्कस ट्रांसपोजिशन साइफर. सो वी हैव गॉट टू कैटेगरीज एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन साइफर एंड ट्रांसपोजिशन साइफर्स. सो अब तक हम जो भी बात कर रहे थे सीजर साइफर की, पॉली अल्फ़ाबेटिक की, मोनो अल्फ़ाबेटिक की, वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन साइफर्स की एग्जाम्पल हैं. आज हम एक एग्जाम्पल करेंगे ट्रांसपोजिशन साइफर की और उसकी एक्यूरेट एग्जाम्पल है रेल फेंस साइफर. सो रेल फेंस साइफर में हम क्या करते हैं, हम कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, बल्कि हम उसी प्लेन टेक्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में शफल कर रहे हैं, उनको आपस में हम रीअरेंज करवा रहे हैं. सो लेट अस see what are the objectives of our today's lecture, so you would be able to present an understanding of the transposition cipher. Transposition cipher क्या होते हैं, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इनकी क्या limitations हैं, हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे. और एक एग्जाम्पल रेल फैन साइफर को यूज करते हुए एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव होगा. So, what are the polyalphabetic ciphers? So, we have discussed monoalphabetic cipher. We have also explored shift cipher. So, what are the polyalphabetic ciphers? So, they improve security using different cipher letters for different occurrences of the same plain text letter. इसका मतलब ये है कि आप polyalphabetic cipher में different लेटर्स, डिफरेंट साइफर लेटर्स यूज करेंगे मुख्तलिफ किस्म की प्लेन टेक्स्ट लेटर्स की फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट. जिसका मतलब ये हुआ कि अगर P आपके प्लेन टेक्स्ट में ज्यादा यूज हो रहा है तो आप उसको किसी और साइफर टेक्स्ट से, साइफर लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट्स से MN बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सो आप MN के अगेंस्ट कोई और साइफर टेक्स्ट यूज करते हुए आप इसको जो है वो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करेंगे. पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इस पर क्रिप्टो एनालिसिस स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपके ढेर सारे लेटर्स आ गए हैं. सो क्रिप्टो एनालिस्ट के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. और जो सबसे एक अच्छी बात है जो कि पॉली अल्फाबेटिक साइफर को स्ट्रांग करती है वो है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जैसा मोनो अल्फाबेटिक साइफर में हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के थ्रू बड़ा इजीली हम गैस कर लेते थे कि कौन से लेटर्स जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, और वो ज्यादा लेटर्स हम नॉन फैक्ट्स के अगेंस्ट कंपेयर कर लेते थे. यहां पे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहती, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट हो जाती है. ठीक है, आपके E और T की फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी Z की होगी. ठीक है, सो आप फिर एज्यूम नहीं कर सकते, आप क्रिप्टो एनालिसिस के थ्रू गैस नहीं कर सकते. ठीक है, इसके अलावा पॉलीअल्फाबेटिक साइफर में जो एक और चीज है वो है की टू सेलेक्ट. इट यूजेस अ की टू सेलेक्ट विच साइफर लेटर इज यूज्ड फॉर ईच लेटर ऑफ द मैसेज.
मतलब आप एक की यूज करते हैं, ठीक है, और उस की के साथ अपने प्लेन टेक्स्ट को मिलाते हैं और उसके अगेंस्ट आप एक साइफर टेक्स्ट हासिल करते हैं। और यू रिपीट फ्रॉम स्टार्ट आफ्टर एंड ऑफ द की इज रीच्ड, मतलब आपने वो सीक्रेट या वो साइफर लेटर यूज किया और उसके अगेंस्ट आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कंप्लीट किया। सो इसकी ढेर सारी डिटेल्स हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द पोली अल्फाबेटिक साइफर्स इज विगनेगर साइफर। विगनेगर साइफर क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट पोली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर। यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, कैटेगराइज करने की बात है, तो आप याद रखिए कि विगनेगर साइफर एक एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन साइफर की, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन साइफर में पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स होते हैं, मोनो अल्फाबेटिक साइफर होते हैं, शिफ्ट साइफर होते हैं, ठीक है। सो पॉली अल्फाबेटिक साइफर की जो एग्जाम्पल है वो है विगनेगर साइफर। विगनेगर साइफर को आप ये भी कह सकते हैं कि ये मल्टीपल सीजर साइफर्स जो हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं। मल्टीपल सीजर साइफर्स या मल्टीपल शिफ्ट साइफर्स आप इसमें यूज करते हैं। एंड की इज मल्टीपल लेटर्स लॉन्ग, ठीक है, मतलब आपकी की जो है वो कोई एक जंप नहीं है, कोई एक वर्ड नहीं है, कोई एक लेटर नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ उसकी लेंथ जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मतलब के जो है वो, जिसने हमने शिफ्ट साइफर में देखा कि के वॉज 1 और 2 और 3 अप टू मैक्सिमम ऑफ 26, जबकि यहाँ पे विगनेगर साइफर में आपकी के जो है वो K1, K2, K3, K4 एंड अप टू लॉन्ग हो सकता है। एंड ith लेटर स्पेसिफाइज ith अल्फाबेट टू यूज एंड वी रिपीट फ्रॉम स्टार्ट आफ्टर D letters in message and decryption simply works in reverse। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं विगनेगर साइफर के। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आप एज्यूम करें कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है और हमारे पास की है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट ऊपर टॉप वाले रो में ABCDEF इस तरीके से लिखा है, और इसी तरह आपके इस स्लाइड के लेफ्ट पर आप देख सकते हैं कि आपके पास अगेन एक की है, ठीक है। की भी उतने ही कैरेक्टर्स की लॉन्ग होनी चाहिए जितना कि आपका प्लेन टेक्स्ट है। अब आप जो है वो इससे एक मैट्रिक्स बनाकर आप इसमें से इसको कंप्लीट करने हैं। सो आप देख सकते हैं कि टॉप पर ए के नीचे जो है वो आपने ABCD अप टू Z कंप्लीट की, इसी तरह बी से आपने शुरू करते हुए BCDEFG और आपने यहां पे ये कंप्लीट किया। थर्ड कॉलम में आपने C से शुरू करके ABC को कंप्लीट किया और जहां पर Z आया उसके बाद आपने दोबारा AB शुरू कर दिया। इसी तरह कॉलम नंबर D में आपने DEFG से शुरू करते हुए आपने अपनी ABC कंप्लीट की और जहां पे Z आया और मजीद अगर अल्फाबेट्स रहते थे तो आपने दोबारा ABC की। यू कीप गोइंग ऑन, और लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपने Z से शुरू किया और उसके बाद आपने Z के बाद अगला अल्फाबेट है ABC एंड यू केप्ट गोइंग ऑन until you receive a Y. So आपने you have got plain text, you have got a key and then you obtain your cipher text accordingly. कैसे? आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। So write the plain text out, आपने plain text लिख दिया। Write the keyword repeated, ठीक है, आपने अपने कीवर्ड को रिपीटेडली लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड है डिसेप्टिव, सो डिसेप्टिव को आप रिपीटेडली लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसको हम इंशाल्लाह अभी देखते हैं। यूज ईच की लेटर एज अ साइफर, सीजर साइफर की, ठीक है, मतलब हर जो आपने की लेटर का है उसको आप सब्स्टिट्यूशन साइफर या शिफ्ट साइफर के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और इसी के आगे तरह एनक्रिप्ट दी कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट लेटर, ठीक है। सो आप उस मैट्रिक्स को देखेंगे और उसके अगेंस्ट जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर आएगा आप वो लिखते जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड डिसेप्टिव यूज करते हैं और डिसेप्टिव को हम लिखेंगे। अब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है वी आर डिस्कवर्ड
save yourself, इसमें से हमने स्पेसेस रिमूव कर दी हैं। सो प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास वी आर डिस्कवर्ड सेव योरसेल्फ। कीवर्ड हमने यूज किया या की हमने यूज की डिसेप्टिव, लेकिन याद रखिए कि हम जिस तरह ऊपर as we have mentioned it on the second point that we need to repeat the keyword. So in this case we have repeated the keyword deceptive at least 3 times. So deceptive, 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 ताकि आपकी जो प्लेन टेक्स्ट की लेंथ है उतनी ही आपकी की भी लेंथ हो जाए। और इस प्लेन टेक्स्ट और की को यूज करते हुए आपने हासिल किया है साइफर टेक्स्ट एज दिस। कैसे आपने इसको ऐसे हासिल किया है, याद रखिए कि आपके प्लेन टेक्स्ट में W है और की है आपकी D। अब W और D की कॉम्बिनेशन Z को रिप्रेजेंट कर रही है और इसी तरह प्लेन टेक्स्ट में E और की में E रिप्रेजेंट कर रहा है I को। कैसे? लेट्स गो बैक टू द सेम टेबल। यहां पे हम ये देखना चाह रहे थे कि W और D की कॉम्बिनेशन से Z कैसे आया है साइफर टेक्स्ट में। द वेरी फर्स्ट लेटर W in the plain text and the very first letter D in the key has given you Z in the cipher text. How? Let us have a look through this table. So we had W, ठीक है। सो आप टॉप में देखेंगे जो प्लेन टेक्स्ट का W था, ठीक है, और आपका की का था वर्ड D, ठीक है, की का वर्ड था D। सो आप देख सकते हैं कि W और D आपको Z की कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। जहां पे W और D क्रॉस कर रहे हैं जिस अल्फाबेट पर, वो आपका साइफर टेक्स्ट होगा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, आपका ये टेबल आपके सामने है, ये मैट्रिक्स इसको कहें या ये टेबल कहें, ये आपके सामने है, आपका प्लेन टेक्स्ट है और आपके पास जो है वो की है। सो आप प्लेन टेक्स्ट और की आप रो वाइज एंड कॉलम वाइज चलते हैं और ये जहां पर ये क्रॉस कर रहा है, जहां पे ये रोज एंड कॉलम्स आपस में क्रॉस कर रही हैं, वो वर्ड आपका साइफर टेक्स्ट होता है। जिस तरह हमारा प्लेन टेक्स्ट था वी आर डिस्कवर्ड सेव योरसेल्फ, और की थी हमारे पास डिसेप्टिव 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 रिपीटेडली, और ये रिपीटेड हमने इसलिए किया था कि आपका जितना प्लेन टेक्स्ट की लेंथ है उतनी ही आपकी की भी लेंथ होनी चाहिए। सो सबसे पहले वी आर डिस्कवर्ड प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास W है और की में हमारे पास D है। सो प्लेन टेक्स्ट का स्क्रीन की टॉप पर देखें W कहां पर आ रहा है, वो आपने कॉलम लिया, और की में आप देखें कि डिसेप्टिव का फर्स्ट वर्ड है D। सो D कहां पे आ रहा है? अब ये W और D क्रॉस हो रहे हैं जिस वर्ड पर, वो रिप्रेजेंट हो रहा है Z से। सो आपका साइफर टेक्स्ट Z आ गया। इसी तरह वी आर डिस्कवर्ड में सेकंड लेटर है W के बाद E, और आपकी की में भी सेकंड वर्ड है E। अब ये E इन कॉलम एंड E इन रो, ये जहां पर क्रॉस करेंगे वो आपका साइफर टेक्स्ट का अगला लेटर होगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि फिफ्थ कॉलम में आपके पास E है, आपने E देखा, और इसी तरह फिफ्थ रो में आपके पास E है। सो ये E और E आपस में क्रॉस हो रहे हैं I पर। सो साइफर टेक्स्ट में आपका अगला लेटर हो गया I। पहला लेटर था आपका Z, अगला लेटर हो गया I। इसके बाद है आपका A, V और डिस्कवर्ड। सो हम स्पेसेस को एज्यूम नहीं कर रहे। सो अगला थर्ड लेटर है प्लेन टेक्स्ट में R का A, ठीक है। सो A आपने लिखा, और की में आपका डिसेप्टिव का थर्ड लेटर है C। सो ये A और C जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। सो A और C आपस में क्रॉस कर रहे हैं C पर। सो इसी तरीके से आप इसको लेकर चलें। सो आपके पास प्लेन टेक्स्ट और यूजिंग द की यू हैव रिसीव्ड Z and I and C and keep going on. So you have received
this particular cipher text. Interesting? Yes, it is very interesting, and more details are simply you have got the plain text, you have got the key, you repeat the key. Why you repeat the key? Because your key should be of same length as of your plain text. Then you pick word by word. So first word of your plain text and the first word of your key. So column and row, ये जहां पर टकराएंगे, ये whichever position they will cross, and there will be a letter, so you will use that letter and you will write it down as a cipher text. ठीक है? So we are discovered save yourself using the key deceptive has been changed into the cipher text as this, and you can see that. So how secure is Vigenegar cipher? अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, so सिक्योरिटी इसकी कैसे है? It is much more secure than the ciphers we discussed earlier. Shift cipher से ये strong है, मोनोअल्फाबेटिक से स्ट्रांग है. ठीक है? क्योंकि आप इसमें ये नहीं देख सकते, इसमें Z की अकरेंस जो है वो बहुत है, इसमें इस तरह हर अल्फ़ाबेट की अकरेंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है. अगर आप इस पर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें, सो आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपको कोई मीनिंगफुल आउटपुट नहीं देगा. सो आप इसको पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर और शिफ्ट साइफर से ये स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यू हैव मल्टीपल साइफर टेक्स्ट लेटर्स फॉर ईच प्लेन टेक्स्ट लेटर. ठीक है? मतलब प्लेन टेक्स्ट वो है, और चूंकि की रिपीट हो रही है, सो मतलब आप ये देखें कि एक दफा अगर प्लेन टेक्स्ट में डी है तो वो जरूरी नहीं है कि वो साइफर टेक्स्ट में वही रिप्रेजेंट हो रहा हो. मतलब जी जहां पे ये क्रॉस कर रहा है, अगला लेटर जो है वो कहीं और पे क्रॉस करेगा. सो वो गेस करना ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्रिप्टो एनालिस्ट के लिए. सो और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो भी ऑब्सक्योर्ड हैं. ठीक है? हिडन है. ठीक है? आप बड़ी आसानी से उनको नहीं कर सकते. सो आप जो है वो इसको कह सकते हैं कि ये बाकी जो स्कीम्स हैं या बाकी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं उससे ये स्ट्रॉन्गर है, उससे ये ज़्यादा मजबूत है. लेकिन बट इट इज़ नॉट टोटली लॉस्ट. इसका मतलब ये है कि आप इसको 100% सिक्योर एज्यूम ना करें कि ये हर किस्म के सिक्योरिटी अटैक से ये सिक्योर है. नो, नॉट रियली, बट there can also be attacks which are used in order to break the Vigenegar cipher and in order to retrieve the plain text from the Vigenegar cipher. यहाँ पे आपको जो चीज़ देखने वाली है, इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो you need to determine the key size. की साइज आपको देखना पड़ता है, and since then can attack each Caesar cipher. मतलब आपको की साइज अगर पता चल जाए तो उसके बाद जो है वो आप इस पे अटैक कर सकते हैं. जब तक की साइज पता नहीं चलेगा या की साइज का अंदाजा नहीं होगा. अब आपके पास अगर हम बात करें अपने प्लेन टेक्स्ट की और साइफर प्लेन टेक्स्ट की और की, तो हमने डिसेप्टिव ये 3 दफा यूज किया था. अब की साइज इसमें ये पूरा नहीं है. की साइज इसमें सिर्फ वर्ड डिसेप्टिव है, विच इज कंप्राइज्ड ऑफ DECEPTIVE, मतलब जो कि 9 लेटर्स पर है. सो आपको अगर ये की साइज पता चल जाए, ठीक है, सो फिर आप इस पे अटैक कर सकते हैं. इसके अलावा रिपीटिशंस इन दी साइफर टेक्स्ट गिव क्लूज टू पीरियड. ठीक है? कुछ वर्ड्स की अगर रिपीटेशन आ रही है, सो आप इस तरीके से भी एक गेस कर सकते हैं. क्रिप्टो एनालिस्ट अंदाजा लगा सकता है कि की का साइज क्या हो सकता है. आइडियली की के साइज का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन की के साइज का पता चल जाए सो आप विगेनेगर साइफर को ब्रेक कर सकते हैं. की का साइज कैसे पता चलेगा? आप रिपीटिशंस इन द साइफर टेक्स्ट से अंदाजा लगा सकते हैं. एंड फाइंड सेम प्लेन टेक्स्ट एंड एग्जैक्ट पीरियड अपार्ट विच रिजल्ट्स इन द सेम साइफर टेक्स्ट. ठीक है? जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं कि repeated VTW in previous example is at a distance of 9. ठीक है? जैसे कि आप अगर previous example में हम यहां पे देखें, so VTW
जो है रिपीट हो रहा है। जेड साइफर टेक्स्ट में ZIC के बाद VTW रिपीट हुआ और फिर QNGRZGW के बाद VTW फिर रिपीट हुआ। सो ये VTW अगले VTW से 9 के डिस्टेंस पर है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो इस रिपीटिशन ने हमें कुछ क्लू दिया, हमें कुछ अंदाजा हुआ। सो इस अंदाजे को और इस क्लू को यूज करते हुए हम उस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल कर सकते हैं, या हम क्रिप्टो एनालिसिस करके हम उसे प्लेन टेक्स्ट को रिवील कर सकते हैं। वन टाइम पैड, इफ अ ट्रूली रैंडम की as long as the message is available, we can build an unbreakable cipher called a one-time pad. Previously हमने सिक्योरिटी ऑफ विगनेगर साइफर की बात की, सो हमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड से हमें कुछ क्लू हुआ कि की का साइज क्या हो सकता है, और फिर उस की के साइज के से अंदाजा लगाकर हम साइफर टेक्स्ट जो से प्लेन टेक्स्ट रिवील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक रियली एक ऐसी की बात करें, रैंडम की बात करें, रिपीट ना हो रही हो, जिस तरह वर्ड डिसेप्टिव रिपीट हो रहा था की में, हम अगर एक ऐसी की ले आते हैं जो कि रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, और जितना मैसेज का साइज है, अगर लेट्स से मैसेज का साइज 36 कैरेक्टर्स है और आपकी की का साइज भी 36 कैरेक्टर्स है, ठीक है, सो जो साइफर टेक्स्ट आप उससे रिवील करेंगे, हासिल करेंगे, वो अनब्रेकेबल होगा। कैसे अनब्रेकेबल होगा, ठीक है, इसको मजीद भी देखते हैं। और इस अनब्रेकेबल साइफर को हम वन टाइम पैड कहते हैं। वन टाइम पैड का मतलब ये है कि ये जब आप उस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट रिवील करेंगे, सो हर दफा जब आप उससे रिवील करेंगे सो वो डिफरेंट मीनिंग्स देगा। सो आपके लिए एग्जैक्ट प्लेन टेक्स्ट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ये अनकंडीशनली सिक्योर है, जिसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट ब्रेक वन टाइम पैड। वाई यू कैन नॉट ब्रेक वन टाइम पैड? बिकॉज साइफर टेक्स्ट से जो आपको प्लेन टेक्स्ट और की कॉम्बिनेशन से जो आपको साइफर टेक्स्ट मिला है, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप आप उससे हासिल नहीं कर सकते। मतलब आपको नहीं पता कि ए कितनी दफा रिपीट हुआ है या सी कितनी दफा रिपीट हुआ है, या कोई ट्राइग्राम है ZTW, ये रिपीट हुआ है या नहीं रिपीट हुआ, ये कितने डिस्टेंस पर है। आपको ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं मिलता, कोई ऐसा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप आपको नहीं हासिल होता, इसलिए आप इसको अनकंडीशनली सिक्योर कह सकते हैं। सो ये दिस वन टाइम पैड, दिस इज अनकंडीशनली सिक्योर। Further discussion on one-time pad with an example is discussed in this particular case. For example, suppose that we are using a Vigenegar scheme with 27 characters. कैसे 27 characters? हमने पिछली एग्जाम्पल पिछले टेबल में देखा ABCDEFG 26 ये और ABCD 26 ये। सो 26 by 26 की ये जो मैट्रिक्स है, इसको तो हमने देखा, ठीक है, लेकिन अगर हम 27 की बात करते हैं, वन टाइम पैड आपने लगा दिया, स्पेस अगर आपने लगा दी, फिर क्या होगा? आपकी यही मैट्रिक्स, यही टेबल आपका 26 by 26 के बजाय आपने स्पेस के लिए भी एक टेबल में एंट्री कर दी, तो ये आपका 27 by 27 का एक टेबल बन जाएगा। अब 27 by 27 का अगर टेबल आपके पास आ गया है, सो आप इससे बड़े इंटरेस्टिंग साइफर टेक्स्ट हासिल कर सकते हैं जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल अगर देखें, साइफर टेक्स्ट है आपका जो ऊपर दिया हुआ है ANKYOD एंड कीप गोइंग ऑन। की में अगर आप देखें तो की में आपके पास स्पेस आ गई है, ठीक है, की में आपके पास स्पेस आ गई है, और ये की जो है वो आपके पास उतनी ही लेंथ की है जितना आपके पास साइफर टेक्स्ट है, इंक्लूडिंग एंड काउंटिंग दी स्पेस, स्पेस को भी आपने काउंट किया है। अब अगर आप इसको क्रॉसली चेक करें और अगर आप विगनेगर साइफर में डिक्रिप्शन वाला फिनोमिना अप्लाई करें, ठीक है, सो आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट रिसीव होता है, ठीक है, वो है मिस्टर मस्टर्ड विद द कैंडल्स स्टिक इन द हॉल, ठीक है, ये आपको प्लेन टेक्स्ट रिवील हुआ है। मतलब आप की का पी और साइफर टेक्स्ट का ए, जब इसको आप वापस रिवील करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम को। इसी तरह
साइफर टेक्स्ट का n और की का x। जब इसको आप डिक्रिप्ट करेंगे तो आपके पास आएगा r, इसी तरह कहीं पे स्पेस आएगी। सो आप उस 27 बाय 27 के टेबल को ड्रॉ करते हुए साइफर टेक्स्ट और की कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए जो प्लेन टेक्स्ट रिसीव करेंगे वो ये हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है मिस्टर मस्टर्ड विद द कैंडलस्टिक इन द हॉल। अगर आप इसी को दूसरी एग्जांपल से लें, सेम साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, सेम साइफर टेक्स्ट है ANKOD, जैसा आपने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा, सेम साइफर टेक्स्ट है। यहां पे की अब चेंज हो गई है और की में अब आपके पास स्पेस भी नहीं है। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट आप अब रिवील करेंगे वो है मिस स्कारलेट विद नाइफ इन दी लाइब्रेरी, ठीक है। सो आपका साइफर टेक्स्ट में कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है, कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप नहीं है। की मुख्तलिफ की के होने की वजह से और स्पेस होने और ना होने की वजह से इन दो केसेस में आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेन टेक्स्ट रिवील हुआ है ये टोटली डिफरेंट है। ये टोटली आपका आपको डिक्रिप्ट करने के लिए या आपको जो है वो क्रिप्टो एनालिसिस करने के लिए या ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए ये आपको कोई हेल्प नहीं करता। सो हम कहते हैं कि ये मोर सिक्योर है या ये अनकंडीशनली सिक्योर है। वन टाइम पैड की एग्जांपल हमने देखी। अगर वन टाइम सिक्योरिटी की बात करें, सो सपोज दैट अ क्रिप्टो एनालिस्ट हैड मैनेज्ड टू फाइंड दीज टू कीज, ठीक है। अगर इस केस में देखें तो एक दफा की थी हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल में दी है और दूसरी दफा की थी जो कि स्पेस के साथ थी पहली एग्जांपल में, और विदाउट स्पेस हमारे पास दूसरी एग्जांपल में की दी गई है। अब साइफर टेक्स्ट के अगेंस्ट अगर क्रिप्टो एनालिस्ट को दोनों ही कीज पता चल भी गई हैं, ठीक है, सो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें करेक्ट की कौन सी है, ठीक है, इसमें करेक्ट की कौन सी है, ये उसके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि साइफर टेक्स्ट सेम था लेकिन की डिफरेंट होने की वजह से आपके जो प्लेन टेक्स्ट रिसीव हुए हैं उनके मीनिंग्स टोटली लॉस्ट हैं, उनकी मीनिंग्स टोटली डिफरेंट है, 180 डिग्रीज में डिफरेंट है। तो आपको कोई अंदाजा नहीं हो सकता कि कौन सी जो प्लेन टेक्स्ट है वो ज्यादा ट्रू है या करेक्ट है। सो मीनिंगफुल आपने प्लेन टेक्स्ट तो हासिल कर लिए, ठीक है, क्रिप्टो एनालिस्ट ने कीज को फाइंड करते हुए मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट तो हासिल कर लिया, लेकिन उसमें से करेक्ट कौन सा था ये उसके लिए जानना मुश्किल हो जाता है और ये उसके लिए जानना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इफ द एक्चुअल की वर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रूली रैंडम फैशन, नन इज मोर लाइकली देन द अदर। जिस की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही पिछली दोनों एग्जांपल्स में एक की स्पेस के साथ और एक की स्पेस के बगैर, अगर ये वाकई रैंडम फैशन में आई हैं और आपने रैंडमली अल्फाबेट्स को लिखा है, सो आपको नन इज मोर लाइकली देन दी अदर। सो दोनों की कॉम्बिनेशन बिल्कुल टोटली कंट्रास्ट है, डिफरेंट है, कोई चीज आपको इससे आइडिया हासिल नहीं होगा। मजीद यह है कि गिवन एनी प्लेन टेक्स्ट ऑफ इक्वल लेंथ टू द साइफर टेक्स्ट देयर इज अ की दैट प्रोड्यूसेस द प्लेन टेक्स्ट। सो आपने जिस चीज का ख्याल रखना है या जो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट यू हैव गॉट द प्लेन टेक्स्ट एंड यू हैव गॉट दी साइफर टेक्स्ट, ठीक है। सो आपका अगर प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट की लेंथ एक है, ठीक है, सो आपको कुछ अंदाजा हो जाता है कि एक ऐसी की होगी जिसने इस पर्टिकुलर प्लेन टेक्स्ट को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो वी हैव एक्सप्लोर्ड दी वन टाइम पैड, वी हैव एक्सप्लोर्ड वन टाइम पैड विद एन एग्जांपल एंड वी हैव डिस्कस्ड इट्स सिक्योरिटी and we have seen that how likely it is to be broken or how likely is it to perform crypto analysis. So an exhaustive search of all possible keys ends up in many legible plain text with no way of knowing which was the intended plain text. जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट आपका था, ठीक है, जो कि आपने रिसीव किया है।
अब अगर क्रिप्टो एनालिसिस के थ्रू आपको वो की पता भी चल जाए, ठीक है, अगर आपको वो की पता भी चल जाती है, लेकिन और हर पॉसिबल की आपने अप्लाई भी कर ली, अब आपको मुख्तलिफ प्लेन टेक्स्ट रिवील हुए हैं। ये प्लेन टेक्स्ट, जैसा मैंने पहले भी बात की कि ये लेजिबल है, ये मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट हैं, लेकिन मीनिंगफुल प्लेन टेक्स्ट में से करेक्ट कौन सा है ये आपको नहीं पता चलता, ये आपको नहीं पता चलता। और इसी ना पता चलने से मतलब आप कह सकते हैं कि द कोड इज अनब्रेकेबल। अब आप पिछली एग्जाम्पल में यहां पे आप देख सकते हैं साइफर टेक्स्ट सेम था, पहली की में एक स्पेस थी, ठीक है, और दूसरी की में स्पेस नहीं थी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अटैकर को इन दोनों कीज का पता चल भी गया, इन दोनों कीज को उसने विगनेगर साइफर के थ्रू साइफर टेक्स्ट के साथ डिक्रिप्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि अटैकर के पास दो प्लेन टेक्स्ट रिसीव हुए हैं, एक है मिस्टर मस्टर्ड विद द कैंडलस्टिक इन द हॉल और दूसरा है मिस स्कारलेट विद द नाइफ इन द लाइब्रेरी। ये दोनों मीनिंगफुल हैं, इंग्लिश इनकी समझ आ रही है, लेकिन इनमें से करेक्ट कौन सा है ये समझ में नहीं आ रही, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्रेट जॉब थी जो कि असाइन करनी थी और इस विगनेगर साइफर के थ्रू ये साइफर टेक्स्ट भेजा गया। अब जब प्लेन टेक्स्ट रिसीव हुआ है, किसी अटैकर ने रिसीव कर भी लिया है, ठीक है, सो उसको नहीं पता चलेगा कि उसने जाके वो सीक्रेट मैसेज मिस्टर मस्टर्ड को जो कि एक कैंडल पकड़े हुए हॉल में है उसके साथ उसने बात करनी है, या लाइब्रेरी में जो मिस स्कारलेट है जिनके पास एक नाइफ है उसके साथ बात करनी है, ठीक है। सो अब इनकी इंग्लिश तो समझ आ रही है, लेकिन इसमें से करेक्ट कौन सा है, इंटेंडेड कौन सा था, ये समझ में नहीं आती बात। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ वन टाइम पैड इज अनब्रेकेबल। याद रखिए आपने इसमें से प्लेन टेक्स्ट रिवील कर लिया है, लेकिन इंटेंडेड प्लेन टेक्स्ट क्या है, मीनिंगफुल आपने रिसीव कर लिया, लेकिन करेक्ट कौन सा है ये आप रिट्रीव नहीं कर सकते वन टाइम पैड में। इसलिए आप कह सकते हैं यू कैन क्लेम दैट द कोड इज अनब्रेकेबल। मतलब जब तक कोई तीसरा हिंट, कोई थर्ड एंटिटी नहीं आएगी, आप इसको रिवील नहीं कर सकते। सो अटैकर के लिए दिस विल रिमेन अनब्रेकेबल। वन टाइम पासवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, जिसको हमने पहले भी देखा कि वन टाइम पासवर्ड्स हैं वो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किए जाते हैं, जिसकी हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की, एंड वी हैव एक्सप्लोर्ड दैट वन टाइम there are daily life examples. For example, whenever you want to create an account on Google, so they give you a temporary password, and that temporary password is used only once, and once it has been used it can no longer be used again. So if an attacker comes to know that one-time password, and if the attacker tries to use that password and tries to log in, that password won't work because it has been already used once. So key must be as long as the plain text. Generating large quantities of random keys is an issue. We have explored here that the code is unbreakable, but the whole security lies within the length of the key, and the key should be random. The key should be random and should remain random all the time. So लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रैंडम्स की जनरेट करना ये वन टाइम पैड में ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है, ये ओवरहेड है, और दूसरा ये की रिपीट नहीं होगी, ये की रिपीट नहीं होगी। सो आप कह सकते हैं कि तीन इश्यूज हैं इसमें। सबसे पहले ये कि लार्ज क्वांटिटीज में रैंडम की को जनरेट करना ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा इसमें चैलेंजिंग इशू ये है कि की रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये कि की डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी सेंडर और रिसीवर में, ठीक है, सेंडर और रिसीवर में इतनी लार्ज कीज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी, ये तीसरा इसमें चैलेंजिंग है। सो ये तीन चैलेंजिंग इश्यूज वन टाइम पैडिंग में हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए सो वन टाइम पैड जो है वो अनब्रेकेबल है। सो अनब्रेकेबल है, लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड
observation has been made here, that is one-time pad is unbreakable but impractical. मतलब अगर आप इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो अनब्रेकेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ये 3 ओवरहेड्स इतने ज्यादा हैं, जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रैंडम की एंड की शुड नॉट बी रिपीटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज, ये 3 ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वन टाइम पैड आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कहीं पे यूज नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं है ये। इसको प्रैक्टिकली डिप्लॉय करने में ओवरहेड्स इतने ज्यादा हैं जैसे कि जिसकी वजह से ये वन टाइम पैड्स कहीं पे यूज नहीं किए जाते। लेट अस फर्दर continue our discussion to the transposition ciphers. And before I start describing what transposition cipher is, let me remind that when we talk about cryptographic scheme, there are 3 dimensions. And the first dimension was how will plain text be converted into the ciphertext? What operation will be performed to change the plain text into the ciphertext? And for this dimension, we discussed that there can be 2 possibilities. Either you can use substitution operation or you can use transposition operation. So in the substitution operation, we have explored 3 examples: shift cipher, monoalphabetic cipher, and polyalphabetic cipher. In shift cipher, we have explored through an example that how A is converted into B if the case size is 1, or how A will be converted into C if the case size is 2. Then we discussed monoalphabetic cipher, and thirdly we discussed polyalphabetic cipher. So we have also explored an example of a Vigenère cipher in the polyalphabetic cipher, and we have seen that how secure or how breakable it is. Now our discussion comes to the other part, and that is transposition cipher. Remember that in substitution cipher, we replace elements. A is replaced by B, for example, or A is replaced by C, for example. But in transposition cipher, we do not replace keys. We do not replace elements in the plain text. We simply change their position. For example, if there is a plain text which you want to convert into the ciphertext, and the plain text is secret, S-E-C-R-E-T. So the transposition says that write T first, then E, then R, and keep going on. So you have rearranged the same plain text in such a way that it has become a ciphertext. So these are the transposition ciphers. So the transposition ciphers hide the message by rearranging the letter order. मतलब आपने letters को shift कर दिया. Word secret में आप T पहले ले आए, ठीक है, फिर उसके बाद E ले आए, so आपने rearrange कर लिया. So no substitution take place. ऐसे नहीं है कि जो प्लेन टेक्स्ट सीक्रेट था उसमें से S जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर एग्जांपल A से, और E रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर एग्जांपल B से. कोई ऐसी बात नहीं है. आपने वर्ड सीक्रेट के ही जो 6 लेटर्स हैं उनको आपने, उनकी पोजीशन आपने चेंज कर दी. रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, सो दीज आर गुड कैंडिडेट्स फॉर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक. ठीक है. अगर आप इसकी सिक्योरिटी की बात करें, सो इसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ वर्ड्स और फ्रीक्वेंसी तो उसी तरीके से यूज़ हो रही है. लेट्स से अगर आप एक पूरे साइफर टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हाईली यूज्ड वर्ड्स हैं वो टी और ई और टी थे, ठीक है. सो सिंपली उनको रिप्लेस कर देने से उनकी फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज हुई. सो अनचेंज फ्रीक्वेंसी की वजह से आप उस पर क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक के थ्रू आप रिवील कर सकते हैं कि इसमें साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट क्या हो सकता है. सब्स्टिट्यूशन साइफर की एक एग्जांपल है रेल फेंस साइफर. रेल फेंस साइफर में क्या होता है? वी राइट द मैसेज लेटर्स आउट डायगोनली ओवर अ नंबर ऑफ रोज, देन रीड
ऑफ साइफर रो बाय रो। ठीक है, सो हम रेल फैन साइफर एक एग्जाम्पल है। आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को डायगोनली लिखते हैं, डायगोनल हम ऐसे लाइन को कहते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं एक मैसेज है, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। हियर यू कैन सी दैट पहले आपने दो रोज बनाई, एक रो और दो रो। पहली रो में आपने लिखा एम और प्लेन टेक्स्ट का अगला वर्ड था ई आपने लिखा सेकंड रो में डायगोनली। फिर प्लेन टेक्स्ट में तीसरा लेटर था ई, ये आपने फिर ऊपर लिखा। फिर चौथा वर्ड था टी, फिर आपने ये फिर नीचे लिखा। सो आप एम ई टी एम ई ए एफ, मतलब आप डायगोनली जा रहे हैं। आपने नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट की हैं, आप डायगोनली जा रहे हैं और इसको प्लेन टेक्स्ट को रोज में डायगोनली लिखने के बाद आप साइफर टेक्स्ट को रो बाय रो पढ़ते हैं। अब अगर रो बाय रो पढ़ें, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक्चुअली तो हमारा जो है वो वर्ड था MEET मीट, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रो बाय रो पढ़ें तो आपके पास आएगा MEMAT, कीप गोइंग ऑन। सो दिस विल गिव यू अ साइफर टेक्स्ट एज MEMATR एंड कीप गोइंग ऑन। इस रेल फैन साइफर में आपने देखा कि आपने कोई नई की यूज नहीं की, आपने किसी लेटर को, किसी प्लेन टेक्स्ट के किसी एक लेटर को किसी दूसरे लेटर के साथ सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया, बल्कि सेम जो प्लेन टेक्स्ट था उसके लेटर्स या उसके एलिमेंट्स को आपने रीअरेंज कर दिया, उनकी पोजीशन चेंज कर दी। सो आपके पास ये एक बड़ी बेसिक और बड़ी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड फॉर द ट्रांसपोजिशन साइफर इज this rail fan cipher. I'll try to re-explain this. Here what you do is that you write the message letters out diagonally over number of rows. आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आपने एक रो सेलेक्ट करनी है, दो करनी है या तीन करनी है। इस केस में हमने दो रोज सेलेक्ट की हैं, रो 1 और एंड रो 2। फिर इन दो रोज में आप मैसेज डायगोनली लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड है मीट, MEET मीट, सो पहली रो में आपने लिखा M, दूसरी रो में लिखा E, तीसरी रो में लिखा, फिर पहली रो में लिखा E और फिर दूसरी रो में लिखा T। फिर उसके बाद अगला वर्ड था मी, ME मी, फिर आपने ऊपर वाली रो में लिखा M और नीचे वाली रो में लिखा। सो नंबर ऑफ रोज में आप अपने प्लेन टेक्स्ट को डायगोनली लिखते जाते हैं। जब ये पूरा मैसेज आपने लिख लिया, उसके बाद आप इस मैसेज को रो बाय रो पढ़ते हैं। ठीक है, सो हमारी दो रोज आई हमारे पास, इसमें अगर हम मैसेज को रीड आउट करें तो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट रिसीव होता है वो है MEMAT एंड कीप गोइंग ऑन। और इसी तरह अगर आप डीक्रिप्ट करने की बात करें, सो डीक्रिप्ट में आप यही प्रैक्टिस इनवर्स में कर सकते हैं। यहां पे जो पॉइंट पहले भी बताया गया वो ये है कि आप इस पे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ड ई जो है वो रिपीटेडली आ रहा है और मोस्टली जो है वो ई यूज किया गया है, उसके बाद जो है वो टी यूज किया है। सो ऐसे केस में एक अटैकर क्रिप्टा एनालिसिस करके या फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके इस साइफर टेक्स्ट के अगेंस्ट प्लेन टेक्स्ट हासिल कर सकता है। याद रखिए, जब आप डिक्रिप्शन की बात करते हैं, सो ये डिक्रिप्शन का मैकेनिज्म आपके रिसीवर को पहले से पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो इससे रिसीव कर सकेगा। अगर मतलब हमने यही बात की है और ये तो बेसिक फिनोमिना है कि सेंडर और रिसीवर को पहले की पता होती है और उस की बेस पर ये दोनों इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। सो ट्रांसपोजिशन साइफर में भी सेंडर ने जिस तरीकेकार के थ्रू इनक्रिप्शन की है, ये तरीकेकार रिसीवर को पता होना चाहिए। यहां पे तरीका यह था कि दो रोज हैं और डायगोनली लिखा है। अब ये चीज रिसीवर को पता होना चाहिए कि दो रोज थी और डायगोनली लिखा गया था और वो इस साइफर टेक्स्ट को रिवर्स ऑपरेशन में अप्लाई करेगा, तभी वो उसमें से प्लेन टेक्स्ट रिसीव करता है। अगर साइफर सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए दो रोज यूज की और रिसीवर जो है वो
उसको 3 रोज के थ्रू रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है, सो ऑब्वियसली वो कभी भी रिवील नहीं कर पाएगा। सो ये मैकेनिज्म, ये तरीकाकार सेंडर और रिसीवर दोनों को पता है, उसके बाद ही ये एनक्रिप्ट कर सक रहा है और ये रिसीवर डिक्रिप्ट कर सक रहा है। सो की यहां पे क्या है, डेप्थ ऑफ द रेल फेंस, दैट इज नंबर ऑफ रोज। ठीक है, सो जब आपने रिसीवर को बताया सो आप इसको कहते हैं नंबर ऑफ रोज विच इज 2। ये उसको पता है कि डायगोनली लिखा गया है, लेकिन रोज कितनी थी जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा वो उसमें से प्लेन टेक्स्ट रिसीव नहीं कर सकेगा। सो इजी टू अटैक यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड। नाउ रो ट्रांसपोजिशन साइफर, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर की, और वो है रो ट्रांसपोजिशन साइफर। रो ट्रांसपोजिशन साइफर इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड is somehow considered to be more secure than the rail fence cipher. What we do here is that we write letters of the message out in the rows over a specified number of columns. ठीक है, हम मैसेज को रोज में लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं कि हमने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स हैं 4 कॉलम्स हैं या 5 कॉलम्स हैं या 6 कॉलम्स हैं। Then reorder the columns according to some key and read column by column. मतलब आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास 7 कॉलम्स हैं, ठीक है, 7 कॉलम्स हैं, लेकिन इन कॉलम्स को हमने नंबर रैंडम दे दिया है। मतलब अगर पहले कॉलम नंबर 1 होना चाहिए था तो हमने पहले कॉलम नंबर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 2 रखा, फिर 5 6 7। अब ये भी हमारी पार्ट ऑफ की है, ठीक है। उसके बाद हम कॉलम बाय कॉलम मैसेज को रीड करते हैं। रो ट्रांसपोजिशन साइफर को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू दोबारा बताने की कोशिश करता हूं, और उसमें हम ये कर रहे हैं कि वी राइट लेटर्स ऑफ द मैसेज आउट इन रोज ओवर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, हर प्लेन टेक्स्ट के हर एलिमेंट को हम रोज में लिख रहे हैं, लेकिन एक कॉलम के अगेंस्ट। ठीक है, फिर उन कॉलम्स को हम रीऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद जो है वो कॉलम बाय कॉलम हम स्टडी और उसको उसमें से हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेन टेक्स्ट था हमारे पास, अटैक पोस्टपोन्डेड अंटिल 2 AM। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट था। अब इसको हमने 4 रोज में लिख दिया। ठीक है, 4 रोज में हमने लिख दिया। 4 रोज में लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि साइफर टेक्स्ट हमें रिसीव हुआ है, क्योंकि हमने इसको कॉलम बाय कॉलम पढ़ा है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 रोज थी, ATTACK, और कॉलम थे हमारे पास 7। ठीक है, सो ATTACK अटैक, और फिर 7वें कॉलम में अगले वर्ड का P। ठीक है, फिर इसी तरह 2, सो 4 रोज 7 कॉलम्स। आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को इसमें एम्बेड किया और फिर कॉलम बाय कॉलम आप रीड करते हैं। सो कॉलम बाय कॉलम आप रीड करें। सो पहला कॉलम है A, फिर O, फिर D, इस तरीके से। लेकिन यहां पे एक और चीज का आप ख्याल रखें कि जो चीज आप पहले रीड करेंगे वो है 4th कॉलम। सो 4th कॉलम आप पहले रीड कर रहे हैं। सो 4th कॉलम जो है चूंकि उसका नंबर 1 है, ठीक है, सो नंबर 1 पे आप रीड करेंगे T, देन N, देन A। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रीड कर रहे हैं। सो आपने दोबारा बताता चलता हूं, 3 काम यहां पे करने हैं। पहले आपने नंबर ऑफ रोज बतानी है, देन यू हैव टू डिफाइन नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड देन यू गिव सम ऑर्डर टू द कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल कॉलम है 7, लेकिन आपने नंबर दे दिया चौथे कॉलम को कॉलम नंबर 1। सो आप कॉलम नंबर 1 में जो लेटर्स हैं उनको आप पहले रीड करेंगे, फिर कॉलम 2 के जो लेटर्स हैं उनको दूसरे नंबर पे रीड करेंगे, फिर कॉलम 3, फिर 4, फिर 5, फिर एंड कीप गोइंग ऑन। सो इस तरीके से आपका साइफर टेक्स्ट रिसीव होगा। सो इस एग्जांपल में हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, अटैक पोस्टपोन्डेड अंटिल 2 AM। वी क्रिएटेड 4 rows and 7 columns. We placed each element in according to the number of row and column, ठीक है, इस तरीके से हमने प्लेस किया और हमने कॉलम्स को नंबर दिया, और कॉलम नंबर 1 जो है वो हम सबसे पहले रीड आउट करने हैं, जो कि हमारे पास हमें दे रहा है TTNA।
then P, T, M, T, and keep going on. Next we have is product cipher. So product cipher क्या है? Ciphers using either substitutions or transpositions are not secure because of the language characteristics. ऐसा जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम इसमें प्रोडक्ट कर लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर, इसका हमने प्रोडक्ट कर लिया, इनको क्रॉस कर लिया, इनको आपने मिला दिया और उसके बाद एक प्रोडक्ट साइफर बनाते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोजिशन साइफर की बात करें या सब्स्टिट्यूशन साइफर की बात करें, दोनों ही लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स की और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक के अगेंस्ट रेजिलिएंट नहीं है और आप जो है वो इस पे क्रिप्टा एनालिसिस करके इसमें से सीक्रेट मैसेज रिवील कर सकते हैं या प्लेन टेक्स्ट आप रिवील कर सकते हैं. सो इन प्रोडक्ट साइफर वी यूज कॉम्बिनेशंस and two substitutions make a more complex substitution. Substitution cipher itself मुश्किल है, ट्रांसपोजिशन साइफर itself मुश्किल है. जब आप इन दोनों को इकट्ठा करके एक नई क्रिप्टोग्राफिक स्कीम बना रहे हैं, सो ये इवन मोर कॉम्प्लेक्स और मोर सिक्योर बन सकता है. But a substitution followed by a transposition makes a new much harder cipher. ठीक है, वही बात है कि पहले आप उस पर सब्स्टिट्यूशन साइफर अप्लाई करें, फिर ट्रांसपोजिशन साइफर अप्लाई करें. ठीक है, सो आपने 2 लेवल्स ऑफ ऑपरेशन अप्लाई जब किए, सो आपका प्लेन टेक्स्ट रियली हार्ड टू ब्रेक हो जाएगा. द साइफर टेक्स्ट दैट यू विल रिसीव विल बी वेरी हार्ड टू बी ब्रोकन डाउन और टू बी एनालाइज. सो आपके अटैकर के लिए या क्रिप्टो एनालिस्ट के लिए इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है. This is bridge from classical to modern ciphers. मतलब इससे पहले आप ट्रेडिशनल या क्लासिकल साइफर्स यूज करते थे, सब्स्टिट्यूशन, शिफ्ट साइफर, मोनोअल्फाबेटिक, विगनेगर साइफर. ठीक है, लेकिन और ट्रांसपोजिशन साइफर की आपने एग्जांपल देखी, रेल फेंस साइफर. अब इन दोनों को जब आप मिला लेते हैं तो एक मजीद कॉम्प्लेक्स, मजीद मोर सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक स्कीम बन जाती है. One example is auto key cipher. So keyword is concatenated with plain text. Plain text है, उसके साथ आगे करके आप की जो है वो लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आपका प्लेन टेक्स्ट था वी आर डिस्कवर्ड. ठीक है, वी आर डिस्कवर्ड. सो वी आर डिस्कवर्ड के ये था आपका, और आपने एक कीवर्ड प्लेन टेक्स्ट के साथ कंकैटिनेट कर दिया. कीवर्ड था आपका डिसेप्टिव, तो ये पूरी की आपकी बन गई डिसेप्टिव वी आर डिस्कवर्ड सेव SAV. ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि ये ऑटो की साइफर के थ्रू आपने प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर दिया. बट दिस इज वल्नरेबल टू क्रिप्टो एनालिसिस. आप यहां पे भी क्रिप्टो एनालिसिस के थ्रू इसमें से रिवील कर सकते हैं, एज कीवर्ड एंड प्लेन टेक्स्ट शेयर same frequency of letter and statistical technique can be applied. मतलब ऑटो की साइफर एक और तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आप इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो ये कोई बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है. हिल साइफर is another example where encryption algorithm takes M plain text letter and substitute for them M cipher text letter. ठीक है, मतलब प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स हैं और हर प्लेन टेक्स्ट लेटर के अगेंस्ट जो है वो M साइफर टेक्स्ट लेटर जो है वो निकलेगा. सो ये भी आपकी एक सब्स्टिट्यूशन साइफर की एक एग्जांपल है. सो द सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब एज KP mod 26 एंड मतलब साइफर टेक्स्ट आपका निकलेगा मैक्सिमम 26 कैरेक्टर से और की अप्लाई करते हुए, और P की जब आप बात करेंगे रिट्रीव करना है प्लेन टेक्स्ट को, सो साइफर टेक्स्ट से एक माइनस करके आपने रिसीव करना है. फॉर एग्जाम्पल मैसेज प्लेन मैसेज आपका ACT और की है आपके पास द की बिलो इज GYBNQURP इन लेटर्स. अब आप क्या करते हैं, इन लेटर्स की जो पोजीशन है वो आप मैट्रिक्स की सूरत में लिखते हैं. जैसे कि G की पोजीशन है 6, A B C D E F G. ठीक है, सो G की पोजीशन 6 है, वो आपने लिख दिया. इसी तरह Y की पोजीशन क्या है वो आपने लिख दी. इसी तरह B की पोजीशन क्या है वो आपने लिख दी. ये आप 0 से शुरू करने हैं, 0 1
जी की अगर बात करें, सो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आप इस तरीके से यूज कर रहे हैं। बी की पोजीशन वैसे तो हम देखते हैं 2 है, लेकिन अगर 0 से शुरू करें तो आपके पास 1 आती है। सो 0 से 25 या टोटल ऑफ 26। सिंस A is 0 and C is 2, yes, क्योंकि आपने 0 से शुरू किया, and T is 19, so the message is the vector in the form of 0 2 and 19। so इसको जब आप की के साथ प्रोडक्ट करते हैं, सो आपके पास आता है 67 222 and 319, और इसको मजीद अगर आप इसके साथ अप्लाई करें सो 15 14 और 7 आता है, और जो आपके 15 पे आपका रिप्रेजेंट होता है P, 14 पर आपका रिप्रेजेंट होता है O, और 7 पर आपका रिप्रेजेंट होता है H। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्लेन टेक्स्ट ACT is now represented, ACT is now represented as POH। So that was an example of Hill cipher। रो ट्रांसपोजिशन साइफर की एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि we write the message row by row in rectangle and read message column by column but permute the order of column। आप देख सकते हैं एक सीक्रेट मैसेज था, meet me after the toga party, ठीक है, जिसको आप इनक्रिप्ट करना चाह रहे थे। सो आपने क्या किया, आपने 4 रोज एंड 7 कॉलम्स में आपने लिखा, सो MEET meet, MEAT meet me and keep going। अब यहां पे आपने कॉलम नंबर 1 को सबसे पहले रीड करना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास है कॉलम नंबर 1 में EEGV, सो EEGV जो है वो यहां पे पहले लिखा गया। फिर दूसरे में है TRAW, वो आपने देख लिया। फिर तीसरे में है, थर्ड कॉलम में है ETOY एंड कीप गोइंग ऑन। सो आपके पास इस तरीके से साइफर टेक्स्ट हासिल हो गया। रो ट्रांसपोजिशन में आप एक से ज्यादा ट्रांसपोजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपने प्रीवियस एग्जांपल में आपके पास साइफर टेक्स्ट आ गया जो कि आपका शुरू हो रहा है EEGV से। अब इस साइफर टेक्स्ट को आप एक दफा फिर रो ट्रांसपोजिशन से गुजार सकते हैं, ठीक है। और आप इसके बाद अगेन इसको कॉलम बाय कॉलम आप रीड करें। कॉलम नंबर 1 को आप पहले रीड करेंगे, सो यू विल गेट G T M and Y, and for column number 2 you will receive VOTA। so you have seen that you have applied row transposition twice in order to make it more secure। so I hope that the transposition ciphers and more accurately the example of row cipher, you have enjoyed this, you have liked this। we have also discussed Hill cipher and product cipher। let us go to the summary of today's lecture। in today's lecture we have discussed transposition ciphers, and with a couple of examples of rail fence cipher was also discussed। we have also explored Hill cipher and product cipher in order to make our communication more secure। हमने ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन साइफर इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसपोजिशन साइफर अपने एंड पर इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग है। जब आप इनकी कम्बिनेशन बनाते हैं सो आपको एक स्ट्रॉन्गर लेवल ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम या कोई स्कीम मिल जाता है। हमने हिल साइफर और प्रोडक्ट साइफर की एग्जांपल्स भी देखी, और हमने देखा कि ये टेक्निक कैसे इनकॉर्पोरेट करके सिक्योरिटी हासिल की जा सकती है। रो साइफर को भी एक्सप्लोर किया गया, जिसमें आप अपने प्लेन टेक्स्ट को 3 स्टेप्स में साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज डिफाइन करते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करते हैं, और फिर आप कॉलम्स को नंबर दे देते हैं। और जब आपका प्लेन टेक्स्ट इन रोज एंड कॉलम्स में आ जाए, फिर साइफर टेक्स्ट हासिल करने के लिए आप कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स कॉलम बाय कॉलम लिखते जाते हैं। रो ट्रांसपोजिशन साइफर को आप एक से ज्यादा लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपने प्लेन टेक्स्ट से रो ट्रांसपोजिशन साइफर को यूज करने से जो साइफर टेक्स्ट आया, इस साइफर टेक्स्ट को आप दोबारा रो ट्रांसपोजिशन साइफर में डालें और वो सेकंड लेवल हो जाएगा। सो सेकंड लेवल पर मजीद आपका
जो ऑलरेडी साइफर टेक्स्ट है वो मजीद एक और तीसरी किस्म के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपको एक ज़्यादा सिक्योरर फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट आपको देता है. सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट फिनोमिना ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसको टू की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं. इसमें एक हमारे पास प्राइवेट की होती है, एक हमारे पास पब्लिक की होती है. ये दोनों मिलकर कैसे कम्युनिकेशन को सिक्योर करती हैं, आपका सेंडर और रिसीवर कैसे एक दूसरे की पब्लिक कीज को यूज़ करते हुए मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे. I hope you enjoyed today's lecture and you have learned many new cryptographic schemes. याद रखिए कि ये जो क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स डिस्कस की गई हैं ये सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स हैं. आप ढेर सारी अपने आइडियाज़ ला सकते हैं और आप अपने हिसाब से अपनी कोई क्रिप्टोग्राफिक स्कीम भी बना सकते हैं. It's all about your creativity. I will see you with more details in next lecture inshallah. Bye for now. Take care and Allah Hafiz.